All right, dear students, let's start today's session. Good morning. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. Today, what we are going to do, we are going to start chapter number 19, right? We are going to start chapter number 19, that is the future tense. The vocabulary part we have already done. Last week we completed the vocabulary part. Today in this session we will be discussing about what actually the future tense is and what are its types, है ना? और इसके क्या क्या types होते हैं, that we will be discussing in today's session, right? So let's begin the session. But before starting, let's discuss what actually the future tense are, है ना? Future tense होते क्या हैं वो तो हमको पता होना चाहिए. So let's discuss that thing. In this tense, we talk about the actions which are going to happen in future. यानी कि इन टेंसेस में हम किस बारे में बात करते हैं, विच आर गोइंग टू हैपन, यानी कि अभी वो हैपन हुए नहीं है, यानी कि वो अभी एक्ट हुए नहीं है, यानी कि वो एक्शन अभी परफॉर्म नहीं हुआ है. वी आर गोइंग टू परफॉर्म देम नाउ. हम उनको परफॉर्म अब करने वाले हैं, वो अभी तक परफॉर्म नहीं हुए हैं, राइट? तो विच आर गोइंग टू हैपन, विच आर गोइंग टू हैपन, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, यानी कि जो फ्यूचर में अब होने वाले हैं उनको उनकी जगह मतलब दैट इन दैट प्लेस वी विल यूज द फ्यूचर टेंस. उन प्लेसेस पे हम लोगों को क्या यूज करना है, फ्यूचर टेंस का यूज करना है. इट्स दैट सिंपल, right? Now moving on to the next we have types of future tense. Next what we have next types of future tense. Now what is this types of future tense? Let's understand. The type of future tense means future tense may we have three types: the simple future tense, the second one is the future continuous tense, and the third one is the future perfect tense. Now you have to remember one more thing, that there is one more type, right? There is one more type, that is the future perfect continuous tense. One type is also there, one more type is also there, future perfect continuous tense, but that is not given in your book, right? That is not given in your book, so we don't need to focus much on that, है ना? हमारे को उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है. We have to focus just first three parts, है ना? हम लोग first three parts को ही discuss करेंगे. The first one is simple future tense, the first one is simple future tense, the second one is future continuous tense, the third one is future perfect tense, right? We will be discussing only these three parts. This one is not of our use, ये हमारे use के लिए अभी नहीं है बेटा. ये आप जब बड़े हो जाओगे 5th 6th 7th में तब आपके आ जाएगा. Till now what you have to remember, you have to understand these three parts only: simple future tense, future continuous tense, and future perfect tense. I hope till here it is clear to everyone, right? Now let's move on to the simple future tense, right? आज हम लोग सिर्फ किसका डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस का ही डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इट इज लिटिल लेंदी, नॉट टू लेंदी बट लिटिल लेंदी, और उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना? मतलब वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी डीप मैनर. चलिए, the first one we have is the simple future tense. Now how we use, where we use, why it is used, everything will be discussed. Your focus must be on the screen, right? So let's understand this one. The simple future tense refers to actions that have not yet begun. I repeat, the simple future tense refers to action that have not yet begun. Begun is the second form of third form of begin, right? Begin, began, begun, this is the third form. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस उन एक्शंस को रेफर करता है जो अभी तक परफॉर्म नहीं हुए हैं या जिनका होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है? द स्कूल विल स्टार्ट नाउ. जो स्कूल्स हैं वो अब स्टार्ट होंगी, तो अभी तक नहीं हुई ना स्टार्ट. सो जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्कूल विल स्टार्ट नाउ, तो उसमें हमने क्या यूज किया, सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज किया. क्यों? क्योंकि वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है. दे विल अकर एट अ लेटर पॉइंट फ्रॉम नाउ. दे विल अकर एट लेटर पॉइंट फ्रॉम नाउ, यानी कि वो फ्यूचर में होंगे, यानी कि अब से थोड़ा समय बाद होंगे. दे विल अकर एट अ पॉइंट फ्रॉम नाउ. ठीक है? यानी कि अभी से कुछ समय के बाद वो होना स्टार्ट होंगे. वी यूजुअली यूज विल शैल प्लस वर्ब. हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, विल शैल का यूज करते हैं और उसके बाद में वर्ब को लगा देते हैं, वर्ब को मेंशन कर देते हैं टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर. यानी कि फ्यूचर के बारे में कुछ भी बताने के लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, विल शैल प्लस वर्ब. You have to say with me what we use in simple future tense, will shall plus verb, right dear students? Now next we have, the next line we have is we use will shall
एज द हेल्पिंग वर्ब। हम विल शेल को कैसे यूज करते हैं? विल शेल को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। विल शेल को कैसे यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। मीन्स जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दैट वी विल बी यूजिंग सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या मेंशन कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट हम लोग मेंशन कर रहे होंगे। देन वी विल बी मेंशनिंग द विल शेल। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे क्या मेंशन करोगे? विल शेल ही लगाओगे ना बेटा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी मेंशनिंग द वर्ब। जस्ट आफ्टर दैट यू विल बी मेंशनिंग दी वर्ब पार्ट। आप उसके बाद क्या लगाओगे? वर्ब लगाओगे। एंड एट द एंड यू विल पुट दी ऑब्जेक्ट। एट द एंड आप क्या पुट कर देंगे, क्या मार्क लगा देंगे? ऑब्जेक्ट मार्क कर देंगे, राइट। सो दिस विल बी योर कंप्लीट सेंटेंस। सब्जेक्ट आपको मेंशन करना ही होता है, then you use will or shall. After that you just put the verb first form, right? आप उसके बाद verb put कर देते हैं and then object, जो भी आपका object होता है sentence में वो आप put कर देते हैं। Let's understand it with some examples, है ना। example से समझना हमारे लिए बहुत easy हो जाता है। So हम examples के through समझते हैं इसको। Example number A we have, my brother will pick us up after school। ठीक है, मेरे जो ब्रदर हैं वो हमें पिकअप कर लेंगे। पिक मतलब क्या होता है? पिकअप मैंने बताया था आपको कि आपको ले जाएंगे स्कूल से, आपको घर तक ड्रॉप करेंगे, तो पिकअप मतलब वही होता है। तो विल पिक, देखो यहाँ पे अब आप इस फॉर्मेट को चेक करो। देखो फॉर्मेट में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? माय ब्रदर हो जाएगा। यस और नो? देन विल शेल, विल और शेल दोनों यूज नहीं करने बेटा, वी हैव टू यूज ईदर ऑफ देम, दोनों में से एक ही यूज करना है। तो मैंने विल को यूज कर लिया, यहाँ पे विल आ गया। देन वर्ब को यूज करना था तो वर्ब आ गई पिक। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट पिक अस अप आफ्टर स्कूल, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। इन द सेम वे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर बी, दैट इज द वेटर। द वेटर इज आवर सब्जेक्ट। द वेटर क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, तो वो सब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया। देन विल और शेल, विल कम, है ना, विल आएगा यहाँ पे, तो हमने लगा दिया द वेटर विल। वर्ब क्या है? ब्रिंग मीन्स लाना, तो वर्ब मेंशन कर दी। एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट, द फूड इन अ मूवमेंट। सो व्हाट द सेंटेंस विल बिकम? द वेटर विल ब्रिंग द फूड इन अ मूवमेंट। जो वेटर है वो फूड एक कुछ ही मूवमेंट में लेकर के आ जाएंगे। तो वेटर विल ब्रिंग द फूड इन अ मूवमेंट। नाउ यू विल आस्क कि सर सी वाले एग्जांपल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सी वाले एग्जांपल में तो सेंटेंस विल से स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक है, सी वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है? विल से हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ अजीब सा ही यूज हो रखा है, बहुत मतलब बहुत स्ट्रेंज सा यूज हो रखा है। आई वॉन्ट, अभी तो हमने विल और शेल कहा था कि विल और शेल आना चाहिए। तो ये समझिए बेटा कि ये वाला सेंटेंस जो है, सी वाला जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव का है। यानी कि इन सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और डी वाला जो है, डी वाले सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं? आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सी वाले में तो आप इंटेरोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं और डी वाले में आप नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम लोग ये समझते हैं कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट फर्स्ट, है ना। सबसे पहले हम उस पार्ट को समझते हैं। देखो हमने क्या किया, अगर आप इस सब्जेक्ट इसको देखेंगे, इन सेंटेंस को देखेंगे, देखिए क्या बन रहा है सेंटेंस। आई के साथ बेटा विल और शेल दोनों लगाया जा सकता है। आप आई विल मीट जेन टुनाइट भी लिख सकते हैं, आई शेल मीट जेन टुनाइट भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? आई विल मीट जेन टुनाइट। अब ये सेंटेंस तो कैसा है बेटा? अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा है हमारे को। इफ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। देन आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, है ना, कुछ नहीं करना। ये हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। अब आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल नॉट मीट जेन टुनाइट। ठीक है, आई विल नॉट मीट जेन टुनाइट, मैं आज रात को जेन से नहीं मिलूंगा। लेकिन जब नॉट नहीं लगाया था बेटा हमने, जब नॉट नहीं लगाया था, दैट टाइम व्हाट वी वर डूइंग, आई विल मीट जेन टुनाइट। ठीक है, बट जैसे ही इसको हमारे को नेगेटिव का बनाना है, इफ आई हैव टू मेक इट नेगेटिव, अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? नॉट मेंशन करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
राइट। चलिए, नाउ यू विल टेल मी व्हाट शुड आई पुट हियर। यहाँ पे इस बॉक्स में मुझे क्या लिखना चाहिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन सिंपली से, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो मेरे को कि यहाँ पे। Sir, not. वेरी गुड भव्य, Sir, not. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। Not. एग्जैक्टली, Sir, not. Sir, not. Not, sir. yes, you all are correct dear students. Here we will mention not, N-O-T. So our sentence will become they will not inform us. वो हमें inform नहीं करेंगे। अच्छा, before that what was the sentence? The sentence was they will inform us. ये sentence था, but जैसे ही हमने not लगा दिया तो that became the negative sentence. वो क्या बन गया आपका? Negative sentence बन गया। I hope this will you will remember this thing. तो चलिए अब आ जाते हैं हम इस वाले सेंटेंस पे। जस्ट अ सेकंड डियर स्टूडेंट्स। yes, now come here on this one, D example, I won't go unless you come with me। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस क्या था? I will go, ठीक है, unless you, I will go if you come with me। राइट, सो इट वॉज द सेंटेंस। ये हमारे पास में सेंटेंस था, आई विल गो इफ यू कम विथ मी। ये हमारे पास में सेंटेंस था, ठीक है। अच्छा, इफ आई आस्क यू कि इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, डी वाले सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, तो कौन बता सकता है मेरे को कि सर कैसे बनाया जा सकता है इसको नेगेटिव? हु कैन टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड। Those who can tell me, please raise your hand. Yes, Bhavya, tell me. Sir, I will go not. I will go not. If you come with me. I will not go if you come with me. Very good. I will not go if you come with me. That's the right sentence. I will not go. अब होगा क्या डियर स्टूडेंट, इसको बहुत सिंपली समझिए। देखो, here I have already mentioned, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन किया है? देखिए, want का मीन्स क्या होता है? will not। जहां कहीं भी बेटा will not लिखा हुआ है ना, उसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो? want लिख सकते हो, WON apostrophe T। यानी कि जहां कहीं पे भी आपके पास में क्या लिखा हुआ है, जहां कहीं पे भी आपके पास में will not लिखा हुआ है, जहां कहीं पे भी आपके पास में will not लिखा हुआ है, there you can simply mention what? want, WONT। ठीक है, ये आप सिंपली मेंशन कर सकते हो। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया। देखो, यहाँ पे क्या था? विल नॉट था ना, तो विल नॉट को हमने क्या लिख दिया? WON apostrophe T। और यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन भी कर रखा है कि इस वांट का मतलब क्या होता है? विल नॉट होता है। अब वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट, कि जब स्टार्टिंग में नॉट आ जाएगा तो बाद में इफ नहीं रहेगा, बाद में इफ नहीं रह करके क्या बन जाएगा? वो अनलेस बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, आप बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे, दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर राइट नाउ, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि हमने सेंटेंस को किस तरीके से समझा है, हमने नेगेटिव कैसे बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस में देता हूं, आपको उसको नेगेटिव बनाना है। आई विल प्ले विथ यू। चलिए इसका नेगेटिव बना के बताइए। हु विल टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड। I will not play with you. Just raise your hand, dear students. Yes, गौरव आप बताइए। Sir, I will. आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आया है गौरव। गौरव प्लीज रिप्लाई अगेन। I will not play with you. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो इसका हमारे पास में क्या बन जाएगा? आई विल
Not play with you. Okay. Can you tell me कि इस will not को क्या लिख सकता हूं? Who will tell me? Parth Kotari. Parth Sarthi. पार्थ आप बताइए इस विल नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं? पार्थ. यस भव्य, टेल मी. Sir, want. वेरी गुड बेटा. Sir, नहीं डब्ल्यू. W-O and apostrophe T. Very good, dear students. Very good. All right. Okay. One more example we are taking, and that will be our last, right? Last we are taking. They will go to picnic. All right. Yes. Now who will tell me? Chirag. Sir, No. They will not go to picnic. They will not go. Stop, dear students. Stop doing this. It is not a vegetable market. Chirag. Sir, they will not go to picnic. Very good. और will not को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? Sir, want. What will be the spelling? W-O-N. Yes. Apostrophe T. वेरी गुड डियर स्टूडेंट. चलिए, आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया है. नाउ लेट मी अनम्यूट यू ऑल. यस, चलिए. तो आई होप कि आपको नेगेटिव वाला समझ में आ गया है. नेगेटिव वन इज क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टू द इंटरोगेटिव वन, है ना? कि अब आपको दे रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. समझिए, ये बहुत सिंपल होता है. कैसे बहुत सिंपल होता है देखिएगा. देखो, लेट सपोज कि आपके पास में सेंटेंस था. क्या सेंटेंस था? आई विल गो टू पिकनिक. ठीक है, ये आपके पास में सेंटेंस था, आई विल गो टू पिकनिक. तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है. व्हाट यू हैव टू डू, ये जो विल है ना बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस थिंग कि विल जो होती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है. इस हेल्पिंग वर्ब को हमारे को क्या करना है? इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे आगे लगा देना है. जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको उठाओ और इसको बोलो गेट आउट, है ना? गेट आउट फ्रॉम द हाउस. तो गेट आउट मतलब क्या होगा कि क्लास के बाहर निकल जाओ, घर के बाहर निकल जाओ. तो क्या होगा? ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आके खड़ा हो जाएगा. सेंटेंस के स्टार्टिंग में आके स्टैंड हो जाएगा, यानी कि खड़ा हो जाएगा. अब उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए. देखिए, विल आपने स्टार्टिंग में ले लिया. नाउ जो आई है उसको आप उसके बाद लगा देंगे. विल आई गो टू पिकनिक. ये आपका सेंटेंस बन जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड. एंड में आपको क्या भी मार्क करना होगा? क्वेश्चन मार्क पुट करना होगा. यू विल हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट वाज द सेंटेंस आई विल गो टू पिकनिक? हमने इस विल को कहां इसको पिक किया और सेंटेंस की स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया. जो विल था उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया और ये पूरा हमारा क्या बन गया? इंटरोगेटिव का सेंटेंस बन गया. राइट. चलिए, वन मोर एग्जांपल लेट मी गिव यू. आई शैल मीट Jane tonight. Yes, who will tell me the answer of this? Just raise your hand if you know the answer. Yes, Bhavya, tell the answer. Shall I meet Jane tonight? Question mark. Just a second. Yes, now tell me. Now tell the answer. Shall I meet Jane tonight? Yes. Very good, beta. It was very simple. Question mark. Yes. तो इट वॉज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स. हमारे कुछ भी नहीं करना था. शेल को पिक करके सेंटेंस की स्टार्टिंग में पुट करना था. यस और नो?
यस, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो सेंटेंस वही बन रहा है, शेल आई मीट जेन टुनाइट, इट इज दैट सिंपल। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं बेटा जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गई होंगी। तो ये मैं इन एग्जांपल्स को एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर, विल दे इन्फॉर्म अस। बेसिकली इट वाज द सेंटेंस दे विल इन्फॉर्म अस। हमने क्या किया, विल को उठा करके सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया, विल दे इन्फॉर्म अस, राइट। सो इट वाज दैट सिंपल। चलिए, एक लास्ट एग्जांपल जो हमारे को यहाँ पे पढ़ना रिमेनिंग था, विल यू बी एबल टू मेक इट टू दी पार्टी टुमारो, मतलब क्या तुम पार्टी में आ पाओगे, क्या तुम पार्टी में रीच कर पाओगे, क्या तुम पार्टी में पहुंच पाओगे। तो विल को हमने स्टार्टिंग में ले लिया, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल गो एज इट इज। रिमेनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का वो एज इट इज आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट। आई होप दैट कन्वर्जन यू कन्वर्ट किए जाते हैं, दे आर नोट एज वेल क्या यूज होता है वो भी है, वी विल बी डिस्कसिंग इन दी टुमारो सेशन, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।